کسی کی دعا لو، کسی کی خدمت کرو، پھر چاہے وہ رائی کے دانے جتنی بھی خدمت ہوگی، مگر وہ رائی کا دانہ جب ہی اگے گا تو ہزاروں دانے ہو جائیں گے۔ ہمارے کرم میں، ہمارے نصیب میں، ہماری تقدیر میں دوسروں کی جو دعائیں لگتی ہیں وہ ہمیں بہت فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن اگر ہماری زمین اچھی ہے، اگر ہماری زمین نرم ہے تو بیج جلدی اگے گا، اچھی طرح اگے گا۔ اور اگر ہماری زمین نرم نہیں، سخت ہے، تو کسی آدمی کی دعائیں لگتی ہیں، ضرور فائدہ ہوتا ہے مگر کم فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ زمین سخت ہے، اس کے لیے پھاوڑے کی ضرورت ہے تاکہ وہ توڑا جائے اور زمین کو نرم کیا جائے۔ اب زمین جو ہے اس کو نرم کرنے کے لیے انسان کو کسی ایسے اچھے آدمی کی صحبت کرنی چاہیے، سنگت کرنی چاہیے، دوستی کرنی چاہیے، کہ جس کے حضور میں جا کے آپ اس کی نیک باتیں سنو۔ جو عابد ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، ان کے بدن میں سے جس طرح ہمارے بدن میں سے ہیٹ نکلتی ہے، گرمی نکلتی ہے، ہمارے بدن کے اندر سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں ہمارے بدن کے اندر الیکٹریسٹی کی وجہ سے سوچتے ہیں۔ ہمارا ہارٹ اور برین دونوں مل کے، برین ایکچولی کنٹرولر ہے، اور ہارٹ کی جو پمپنگ ہے اس کی حرکت سے الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے۔ 22.5 وولٹ کی الیکٹریسٹی ہمارا باڈی، ہمارا ہارٹ جنریٹ کرتا ہے، 22.5 وولٹ۔ بیٹری کے ایک سیل میں 1.5 وولٹ ہوتا ہے، تو آپ یہ خیال کر لو کہ کتنے ہونے چاہیے، لگ بھگ 15 بیٹریاں آپ رکھو تو اتنی الیکٹریسٹی ہماری بدن جنریٹ کرتا ہے۔ انسان جوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی الیکٹریسٹی گھٹتی جاتی ہے۔ اس الیکٹریسٹی کے گھٹنے کی وجہ سے انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، عمل اعمال، حرکات و سکنات ہیں نا، اس میں فرق پڑتا ہے۔ جیسے کہ آپ ریڈیو بجا رہے ہو اور آہستہ 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 بیٹری کے سیل ویک ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح اس کی آواز ویک ہوتی جاتی ہے، تو بڑھاپے کے اندر یہ جنریٹ کم ہو جاتی ہے۔ اس کو صبح کی عبادت جو ہے پش کرتی ہے، یعنی بیٹریاں جلدی ختم نہیں ہوتی صبح کی عبادت کرنے سے، اور بڑھاپے کے اندر بھی وہ آدمی ایکٹیو اور اچھا رہتا ہے۔ پھر بھی ظاہرہ طور پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسے چھوٹے چھوٹے اپریٹس کینیڈا، یورپ، امریکہ وغیرہ میں ابھی نکلے ہیں، اور وہ جاپان نے انوینٹ کیے ہیں، کہ آدمی جن کو ریومیٹزم ہے، آرتھرائٹس ہے، ہڈی کے درد ہیں، یا اس کو دم وغیرہ اور سانس کی ریسپریٹری اس کو خرابیاں ہیں، تو یہ ساری خرابیاں وہ چھوٹا سا اپریٹس ہے، اور اس کو 2 ہاتھوں سے یا 2 پاؤں سے باندھ لینا چاہیے، تو وہ 22.5 وولٹ کی الیکٹریسٹی ہمارے بدن کے اندر گھساتا رہتا ہے، اور ہمارے اندر انرجی بڑھ جاتی ہے۔ صبح کی عبادت سے یہ انرجی ملتی ہے۔ صبح کی عبادت کے وقت آسمان سے انرجی نیچے اترتی ہے جو دن کے وقت نہیں اترتی، کیونکہ سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں ان کی وجہ سے یہ آسمان کی جو کاسمک ریز ہیں وہ نیچے نہیں اتر سکتی۔ یہ کاسمک ریز انسان کے مائنڈ کو، اس کے دل و دماغ کو بہت تقویت دیتی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ اس لیے کہا کہ مجھے ایکسپلین کرنے سے، یعنی کچھ کہنے سے پہلے میں ایکسپلین کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ ہم اسماعیلی لوگ دوسرے تمام مذہبوں سے اچھے کیوں ہیں؟ کہ اس میں بڑی خوبیاں ہیں، ہمارے طریقے میں، ہماری جماعت میں، ہمارے مذہب میں، اور یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جو دوسرے تو جانتے ہی نہیں، مگر افسوس یہ آپ میرے بھائی بہن بھی نہیں جانتے، میں کیا کروں؟ اور آپ نے یہ جاننے کے لیے کبھی تمنا کی؟ تو عرض کرتا تھا کہ ہمارے بدن میں سے جس طرح سے گرمی کی
वेव्स, लहरें निकलती हैं, इसी तरह से हमारे बदन में और खास तौर पे हमारे ब्रेन में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लहरें निकलती हैं, जिस तरह रेडियो की लहरें। और ये वो लहरें हैं कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और यकसुई के साथ आप हजरत इमाम को याद करते हैं, तो अगर मौलाना हजरत इमाम आज लंदन में है तो आपका मैसेज हजरत इमाम को पहुंच रहा है और हजरत इमाम का मैसेज आपको मिल सके। हम नॉर्मली साइंस के अंदर इसको कहते हैं टेलीपैथी, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो टेलीपैथी से कुछ ज्यादा है। इस चीज को आप इतना बढ़ा दो कि वो टेलीविजन बन जावे, तो आपके दिमाग की लहरें मौला के जिस्मानी दिमाग की लहरों से जब मिलती हैं तो आपको उसका जवाब मिलता है और आप उसको देख सकते हो। अब हमारे बदन की वो लहरें कि जो अच्छी लहरें हैं, जैसे कि आबिद लोगों की होती हैं, इस ऐसे आदमी के पास जाके आप अगर बैठो, मैं आपको कह रहा था कि जमीन नरम कैसे होवे, पत्थर वाला दिल है वो कैसे नरम होवे, तो आप अगर ऐसे आबिद आदमी के पास जाके जो बैठोगे ना, तो उसके बदन और दिलो दिमाग से जो लहरें निकल रही हैं, उन लहरों के अंदर खुदा की एनर्जी है, वो आपको मिल रही है। जैसे कि अगर किसी शख्स ने खुशबू लगाई हुई है और आप उसको गले लगाओ या उसके पास बैठो तो वो खुशबू आपको भी मिलती है। आबिद आदमी के पास सिर्फ बैठने से भी आपको उसकी लहरों का फायदा होता है। हमारे पीरों ने एक कमाल किया, हमारे लिए बड़ी रहमत की। हम जब जमात खाने में आते हैं, देखो इधर 2000 की से ज्यादा आदमी बैठे हैं, हमने 2 दुआएं पढ़ी। दुआ की आखिर में शाजो दीदार का पंजा लेते हैं। हमारे बदन में 3 ऐसे पॉइंट हैं कि इन पॉइंट से हम अपनी मन से, इच्छा से, अपनी ख्वाहिश से अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। एक है हमारी हथेली, दूसरा हमारी आंखें, तीसरा हमारी आवाज। ये 3 चीजें हैं कि हम अपनी अंदर की रूहानी एनर्जी हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरों तक पहुंचाने से मेरा मतलब है कि अगर कोई आदमी यहाँ बैठा है और आपका कोई लड़का, आपका बेटा, आपका कोई प्यारा 10,000 माइल पे बैठा है, तो ये एनर्जी आपको 10,000 माइल तक पहुंचा सकते हो। फिर जब दुआ खत्म होती है, हमारे पीरों ने फरमाया शाजो दीदार लो, पंजा लो। हम सामने वाले का पंजा मिलाते हैं। अभी ये पंजा क्या है कि हमारी हथेली सामने वाले के हाथ की हथेली से मिलनी चाहिए। हम लोग जब शाजो दीदार लेते हैं, शाजो दीदार, शाजो, उंगलियां खाली पोटे मिलते हैं और वो जो मिलने वाली जगह हमारी जो एनर्जी डिसिपेट करने वाली हमारी जो हथेली है, वो तो टच होती ही नहीं। और ये इसका लॉक है, 2 अंगूठे, एक का अंगूठा दूसरे के अंगूठे के नीचे जाना चाहिए, हथेली से हथेली मिलनी चाहिए, तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। फिर हम आंखों में आंखें डाल के कहते हैं शाजो दीदार, तो आंखों से एनर्जी ट्रांसमिट होती है। फिर हम मुंह से बोलते हैं तो वो मुंह से एनर्जी ट्रांसमिट होती है, शाजो दीदार। ये 3 पॉइंट हैं, हम एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। मानो कि आपके पास बाजू में एक बड़ा आबिद बैठा है, आपको मालूम ही नहीं कि वो कितने दर्जे का आदमी है। आपने जब उसके साथ शाजो दीदार का पंजा दिया और उसने देखा आपको, आपने उसको देखा, उसने कहा शाजो दीदार, आपने कहा शाजो दीदार, तो उसकी बहुत सी एनर्जी आपको मिलती है। अगर हर रोज ऐसी चीजें बनती रहती हैं तो आहिस्ता 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 आपके दिलो दिमाग की कदूरत निकलती जाती है, डस्ट निकल जाती है, धूल मिट्टी और निकलती है और आपका दिलो दिमाग रोशन होने लग जाता है। एक तुलसी नाम का एक शायर था हिंदुस्तान के अंदर, वो बड़ा आबिद था। उसने एक बड़ी अच्छी बात की इसी ज़मरे के अंदर। वो कहता है कि तुलसी संगत साध की, साध यानी आबिद। किसी आबिद के पास जाके बैठो, उसका क्या दर्जा और रिजल्ट है। वो कहते हैं तुलसी संगत साध की,
कटे कोटि अपराध, 1 करोड़ गुना और वीकनेसेस दूर होती हैं। और ऊपर की लाइन में कहता है एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है, आधी घड़ी, एक नहीं तो आधी सही 11 मिनट, आधी की भी आध 5 मिनट, एक घड़ी आधी की भी आध, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। किसी नेक आबिद आदमी के पास जाके 5 मिनट भी बैठो तो 5 मिनट में भी उसकी वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी जो आपको मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में फर्क पैदा हो जाएगा, नेकी की तरफ राग़िब हो जाओगे और अंदर की कदूरतें धुल जाएंगी। इससे दिल नर्म होता है। मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं, संगत करो दीनदार की, जाओ बैठो उसी के पास, हींग के बासन में हींग की, फूलों के बासन में फूलों की बास। और ये हींग का बासन कौन? जमात खाने आता नहीं, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, दगा फरेब करता है, चोरियां करता है, तमाम दुनिया की बदियां बुराइयां या आधी या सारी उस आदमी के पास आप जाके बैठो तो आपको हींग ही की बास आएगी ना, क्या मिलेगा? वहां कोई इबादत की खुशबू नहीं आएगी, वहां नेकी की खुशबू नहीं आएगी, वहां आपको कोई मिश्री का स्वाद नहीं आएगा, वहां तो बदी ही बदी है। संगत एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज है। सोहबत साले, शेख सादी कहते हैं, सोहबत साले तुरा साले गुनत, सोहबत ताले तुरा ताले गुनत। अच्छी सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी, खराब सोहबत तुझे खराब बना देगी। अपने बच्चों को खराब बच्चों की संगत दोस्ती से बचाओ, अपने आप को भी खराब आदमियों से बचाओ। जो आदमी गीबत करते हैं, जो दूसरों की बातें करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं उसकी बैक में, जिसको हम गीबत कहते हैं, निंदा कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है गीबत करने वाले अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। किसी का भाई मर गया है, छुरी लेके उसकी लाश में से थोड़ा टुकड़ा निकाल के वो खावे, वो कैसा है? जानवर से भी खराब। अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। दुनिया में अच्छे लोगों की संगत करो। इसलिए दीनदारों, हमारे मौला ने हमेशा इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया कि तुम रोज जमात खाने आओ। अरे रोज जमात खाने आने में कितने ही फायदे हैं। एक तो ये है कि हम अच्छे नेक आदमियों के साथ मिलते हैं। सारी जमात के अंदर मौला करे तो बहुत आबिद हैं, लेकिन ऐसा मान लो कि 500 की जमात में एक आदमी भी अगर ऊंचे दर्जे का आबिद है, चाहे वो माँ की गोद में सोया हुआ 3 महीने का बच्चा भी क्यों ना हो, उसकी रूह बहुत बुलंद होगी, तो उस आदमी की, उस बच्चे की रूह की वजह से भी सारी जमात की दुआएं कबूल होती हैं, बरकतें मिलती हैं, जो हमें ये चीज बाहर नहीं मिलती। जमात खाने में आने से मौलाना हज़र इमाम के दीदार का शरफ मिलता है, यानी दीदार किया है उतना हमें फायदा और लाभ मिलता है, और ये सवाब हमारी बहुत से गुनाहों को बिल्कुल तोड़ के भस्म के बर्बाद कर देता है। ये वो नेकियां हैं दीनदारों कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, तहकीक जो नेकियां हैं वो बदियों को बर्बाद कर देती हैं। वो नेकियां जमात में मिलती हैं। ये वो हीरे मोती हैं जो आपको दुकान पे बैठ के नहीं मिलते। अगर आपका यकीन है कि खुदावंद आलमीन रोजी रिज़्क देने वाला है, तो आप उसके लिए अपनी दुकान बंद करके उसको मिलने के लिए आओ, तो क्या वो एवज छोड़ देगा?